Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study environmental education. Now start the lecture and understand what is environmental education. See, environmental education is the process of making people aware of the environment. This is the process of educating people about environment, and this is the process of making people responsible, right, responsible for environment, right. और इस प्रोसेस के द्वारा ही ये एक्सप्लेन किया जाता है, राइट, ये एक्सप्लेन किया जाता है कि which human activity has negative impact on the environment, right, and which product has negative impact on the environment, right. Also इससे लोगों में जो प्रैक्टिस है, राइट, लोगों की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है या डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस है या बिहेवियर है उसको चेंज किया जा सकता है, राइट. और यदि पीपल की बिहेवियर में चेंज आता है, डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हैं, राइट, उनमें चेंज आता है, तो ऑब्वियसली उससे एनवायरनमेंट पर, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, राइट. लोगों को अवेयर किया जाता है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. For an example, climate change, global warming, ozone layer depletion, and how can these environmental problems be solved, right? और उन environmental को solve करने में उस particular person का, right, individual level पर, national level पर और international level पर क्या contribution हो सकता है, which means what is his or her role, right, to promote the environment, right. ताकि हमारी जो अर्थ है, राइट, हमारी अर्थ पर जो लाइफ सस्टेनिंग जो कंडीशंस है या लाइफ सस्टेनिंग जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती रहे, साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, राइट. नाउ हम ये समझेंगे कि इसका रीजन क्या है, राइट. तो ये जो है वो 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट. व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, right, and what are different reasons for environmental education. या फिर ये दूसरे वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, what is environmental education, right, and why the environmental education is necessary. This may be asked in the examination. साथ ही साथ 3 मार्कर में environmental education की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. तो environmental एजुकेशन को मैंने आपको ब्रॉड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. शॉर्ट में हम जो है इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टडी द एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द नेसेसिटी फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. सी, एनवायरमेंटल एजुकेशन मेक्स अस aware of usability of environment, problems of environment and conservation of the environment, right. And the environmental education, which is also known as environmental awareness, is key to addressing environmental problems, right. And the reason behind environmental education and the necessity of environmental education can be understood through these points. The first is environmental creates greater awareness, right. और अवेयरनेस बहुत जरूरी है because we use different goods, right, we use different services and we have different activity or we have different behavior. अगर हम अवेयर होंगे कि क्या environment के लिए what is good or what is bad for the environment, which activity has negative impact on environment, then definitely either we would avoid those items, services or human activity, or we would search for new alternative, या हम उनका जो यूजेस है वो रिड्यूस कर देंगे. सो दिस environmental education creates greater awareness about the relationship between humans and the environment among individuals or communities at various levels, from village to national level and from village to international level. Second, greater environmental awareness makes people or organizations more cautious about the environmental
इश्यूज, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, उसके जो है उसके लिए जो है कॉशियस बनाती है। थर्ड, द environmental education will develop a positive attitude toward people about the environment, right? And this, the usability of resources would be more sustainable, right? More sustainable, right? Now let's study what is the importance of environmental education, right? This may be asked as a 5 marker question, but हो सकता है आपसे ये 11 मार्कर में भी पूछे, बट देयर आर हाई चांसेस जो है 5 मार्कर में ही पूछा जाएगा। व्हाट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, राइट? द फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन helps in making the students responsible citizen, right? तो जो environmental education को यदि स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उससे जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने कंट्री के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे या वो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन होंगे, राइट? जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचेंगे या उस पर जो है थॉट रखेंगे। Then students have knowledge of their rights and duties, right? See, गवर्नमेंट भी environment को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस एक्ट्स को, प्रोग्राम्स को लॉन्च कर चुकी है, राइट? ऑल्सो हम हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में भी हमारे ह्यूमन राइट्स भी है कि वी मस्ट हैव गुड एनवायरनमेंट, राइट? तो एनवायरनमेंट एजुकेशन से स्टूडेंट्स को अवेयर किया जा सकता है एंड स्टूडेंट्स have knowledge of their rights and duties. Third, this helps in the development of social character of the man or human, right? This explains the importance of forests and wildlife in our life. क्योंकि अगर लोगों को इम्पोर्टेंस ही पता नहीं होगा तो वो फॉरेस्ट कवर को जो है रिड्यूस करते जाएंगे, वाइल्ड लाइफ की जो एक तरीके से मीट के लिए हंटिंग होगी, किलिंग होगी, पोचिंग होगी, राइट? तो इसका इम्पोर्टेंस लोगों को अवेयर, इसका इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी है, राइट? एंड आई वुड आस्क यू क्वेश्चन कि यदि मैं फूड चेन को हटा दूं तो क्या आप एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को जानते हैं? नहीं जानते हैं, राइट? जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फूड चेन, फूड वेव। अगर कोई भी एक प्लांट जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो ह्यूमन वुड हैव टू फेस serious problem in the future. Also, this education helps the government to plan on a complex level regarding the environment, right? तो जो complex level की जो problems होती हैं उनके eradication के लिए भी government plan कर सकती है। And this education explain the relation of human with environment and the benefits, right? The benefits as well as the harms caused by the environment to human and the benefits and harms caused by humans to the environment, right? Next, different methods, right? This may be asked as a 5-marker question, right? What are the different methods of environmental education? So let's study different methods of environmental education. See, environmental education की मे बी वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, बट हम उन सबको दो में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? सो देयर आर द टू मेथड्स टू प्रोवाइड एनवायरमेंटल एजुकेशन। द फर्स्ट इज फॉर्मल मेथड और सेकंड इज इनफॉर्मल मेथड। द फर्स्ट इज फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट? अब फॉर्मल से सीधा आप समझ ही चुके हैं, राइट? द फर्स्ट इज फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है इसमें जो है करिकुलम को सेट किया जाता है, उस करिकुलम के आधार पर जो है स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाता है, राइट? और डिग्री प्रोवाइड्स कराई जाती है, राइट? और रिसर्च होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो इन दिस वे फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स proper environmental syllabus and curriculum at primary level, secondary level, UG, PG and PhD level, right? और इस एजुकेशन को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है, राइट?
आल्सो रिसर्च फैसिलिटीज भी इन लेवल पर अवेलेबल होती हैं। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट एजुकेशन। देखिए जो फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है इसमें सभी लेवल पर एजुकेशन उपलब्ध कराया जाता है, सो दैट जो स्टूडेंट है वो एनवायरनमेंट के हर एक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके, राइट। बट जो इनफॉर्मल एनवायरनमेंट एजुकेशन है इससे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, राइट, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्किंग मैन हो, वीमेन हो, किसी भी फील्ड या सेक्टर से रिलेटेड हो। तो इनफॉर्मल environment education includes knowledge or information spreading through television, right, radio, newspaper, conferences, summits, signboards, etc etc, so that लोगों को डूस एंड डोंट्स के बारे में जो है अवेयर किया जा सके। देन evolution of environmental education at the international level, and this is the important कि अगर हम देखें तो जो पहले स्टडी जो बुक्स होती थी, राइट, जो फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल एजुकेशन की जो बुक्स होती थी उनमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी, डिजाइंड सिलेबस या करिकुलम नहीं होता था, राइट, फिर डिग्री भी प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। ये सब कुछ जो है कैसे इवॉल्व हुआ है उसको हम समझते हैं, इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर भी समझेंगे, साथ ही साथ इंडिया में जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है वो हम दोनों पर समझेंगे। तो दोनों से 5 मार्कर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टडी एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एट इंटरनेशनल लेवल, राइट। सो IUCN, International Union for Conservation of Nature, formalized environment education in 1917, which means 1970 से पहले जो है फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता था, बट IUCN जिसको हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट, जो कि रेड डाटा बुक को भी क्या करता है, रिलीज करता है। तो IUCN फॉर्मलाइज्ड एनवायरनमेंट एजुकेशन इन 1917 सो दैट इस फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम से इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, राइट। उसके बाद में यूनेस्को, राइट, बिलीसी कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। देखिए इन 1977 द बिलीसी डिक्लेरेशन अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, राइट। तो यूनेस्को, राइट, यूनेस्को भी जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो यूनेस्को की क्या हो जाएगी, बिलीसी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, जो कि कब हुई थी, 1977 में हुई थी, राइट। सो देयर वाज अ बिलीसी कॉन्फ्रेंस इन 1977 जिसमें बिलीसी डिक्लेरेशन को जो है एग्जिस्टेंस में आया था। सो इन 1977 बिलीसी डिक्लेरेशन अबाउट द एनवायरमेंटल एजुकेशन with a major objective of awareness, knowledge, attitude, skill and participation in the conservation and promotion of the environment, right? Or the objectives of Tbilisi conference were, first object, group of individuals, right, or group of organizations, group of individuals or group of organizations must acquire the skill for solving environmental problems, क्योंकि जो environmental problems होती हैं उनको फाइंड आउट करना, एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, देन सॉल्व करना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, राइट। तो जो यूनेस्को बिलीसी कॉन्फ्रेंस थी उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को must acquire the skill for solving environmental problem. Second, awareness should be for the whole environment and related problem. And third, make people sensitive toward the environment. Right? Third क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूमैन्स क्लासिफिकेशन 1981 हो जाएगा। इन्होंने भी environmental education के लिए क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था और ये बताया था कि जो है फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों नेसेसरी है। सो वी कैन से दैट न्यूमैन्स क्लासिफिकेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन 1981, द एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी इन 3 एस्पेक्ट,
ये 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, राइट। सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और स्टडी शुड बी इन 3 एस्पेक्ट। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस थ्रू चेंजिंग सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी को अवेयर करें, ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करें और सोसाइटी के जो चेंजेस हैं या सोशल बिहेवियर को चेंज करें, तो ऑब्वियसली उससे जो ह्यूमन डिस्टरबेंस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। एंड इफ देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी और वी कैन से दैट देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट, तो उससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होगा। सेकेंड, emphasizing the study of process in the environment that degrade the environment। और ये किससे रिलेटेड है? पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि जो पॉल्यूशन, जो emphasizing the study of process in the environment that degrade, which means स्टूडेंट्स को पॉल्यूशन के बारे में जो है एजुकेशन देना चाहिए। then emphasizing the study of technical processes that helps in reducing pollution and its impact on the environment. Now let's study environmental education in India, right? ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, right? So let's study environment education in India. See, India is very diverse country, right? चाहे वो कल्चरली हो, क्योंकि इंडिया में कई लैंग्वेजेस हैं, राइट, कई कल्चर हैं, और साथ ही साथ इंडिया में लार्ज क्लाइमेटिक जोन्स हैं, राइट, इको सेंसिटिव जोन्स हैं, तो इकोलॉजी भी क्या है? डाइवर्स है, राइट। सो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री इकोलॉजिकली एंड कल्चरली। साथ ही साथ जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, राइट, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे वेदास हो जाएंगे, पुराण्स हो जाएंगे, राइट, रामायण, महाभारत, और जितनी भी जो हिस्टोरिक स्टोरीज हैं, राइट, या जो वैदिक जितनी भी स्टोरीज हैं, उनमें यही बात निकल आई है कि एनवायरनमेंट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट। और प्रीवियसली फर्स्ट लेक्चर में भी हमने यही समझा था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, राइट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को आज प्रमोट इंटरनेशनल लेवल पर किया जा रहा है, बट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में पहले से ही एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को जो है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को फोकस किया गया है। एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। हाउएवर, इंडिया में जो ग्रोविंग पॉपुलेशन है, राइट, और उस पॉपुलेशन की जो ग्रोविंग नीड्स है एंड अनअवेयरनेस ऑफ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। In 1983-84, the Ministry of Environment, right, Forest and Climate Change, right, launched environmental education। तो इंडिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1983-84 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट लॉन्च्ड एनवायरनमेंट एजुकेशन, बट दिस emphasized the informal, right, this emphasized the informal way of environment awareness, right। तो 1983 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एनवायरनमेंट एजुकेशन को लॉन्च तो किया, बट ऑल्सो emphasized the informal way of environmental awareness, which means that newspaper, media, television, right, जो कमिटीज हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसके माध्यम से, राइट, लोगों को, स्टूडेंट्स को, पीपल को, सिटीजन को या ग्रुप्स को अवेयर किया जा सके, राइट। बट इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक कंपल्सरी एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो यहां पर यह स्पष्ट है कि गवर्नमेंट ने तो इनफॉर्मल वे ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट किया था, बट इन 1991 Supreme Court of India directed the government to make compulsory environmental education at all levels of education, which means primary level, middle level, right? And government incorporated the environment in the school syllabus from 2004-5। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कब दिया था? 1991 ने। एंड गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड द एनवायरमेंटल एजुकेशन इनटू द सिलेबस फ्रॉम 2004 to 5, राइट। और इस तरीके से
नाउ डेज अगर आप देखते हैं तो प्राइमरी स्कूल में भी एनवायरनमेंट जो है सब्जेक्ट तो नहीं होता है, सॉरी जो प्राइमरी लेवल पर है तो उसमें शुरुआत से ही प्राइमरी लेवल से ही जो एनवायरनमेंट के बारे में दिया जाता है, राइट। फिर जो मिडिल स्कूल है इसमें भी एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं साइंसेस में, सोशल साइंसेस में मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से प्राइमरी लेवल पर जो है एनवायरनमेंट की बुक्स ही अलग आती है, राइट। तो मिडिल स्कूल पर भी और हाई स्कूल पर भी जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है बुक्स में फिक्स्ड सिलेबस होता है, करिकुलम होता है और स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के बारे में जो है अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन दी जाती है। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया? So let's study different problems of environmental education in India. The first is there is a controversy in the implementation of educational curriculum of the environmental education. कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो है एनवायरनमेंट के सिलेबस को या इकोलॉजी को इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मिडिल लेवल पर होना चाहिए, राइट। और जो इन्वायरमेंट का पूरा सिलेबस है तो जो एजुकेशनल करिकुलम है वो कितना वाइड होना चाहिए, कितना शॉर्ट होना चाहिए, किस क्लास में होना चाहिए, इसको लेकर क्या है डिस्प्यूट है। सो देयर इज डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल करिकुलम ऑफ द इन्वायरमेंट एजुकेशन। सेकेंड, देयर इज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ स्टडीज ऑन चिल्ड्रन, राइट। तो प्राइमरी स्कूल में जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको लैंग्वेज, मैथ्स, राइट, लैंग्वेज और मैथ्स उनके लिए कंपलसरी होता है, राइट। ऑल्सो उनके लिए सोशल साइंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ अगर एक बुक जो है वो इन्वायरमेंट की होगी तो उससे एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से भी इतना जो है इसको प्रमोट नहीं किया जाता है। देन environmental education is not given priority by the education department and teachers, right. Also there is lack of willpower of the government, right. अगर गवर्नमेंट चाहे तो करिकुलम में या सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स को मेंशन किया जा सकता है। देन देयर इज a lack of related teachers and other resources. Now we will study relation of environmental education टू हेल्थ एंड क्या हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें हेल्थ, अब ऑब्वियसली हेल्थ क्या होती है, देखिए हेल्थ वह कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन है या इंडिविजुअल है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, राइट। वह डिफरेंट डिसीजेस से क्या होता है, दूर होता है। ऑल्सो उसका मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, राइट। तो अगर हम हेल्थ को शॉर्ट टर्म में कहें, राइट, सो हेल्थ मींस लैक ऑफ डिसीज, राइट। इन नैरो एक्सप्लेनेशन हेल्थ मींस absence of disease or weakness, but in broad words we can say that health is a situation, right, in which there is a physical development, mental development as well as emotional well-being, right। और सेफ्टी जो है ह्यूमन सेफ्टी अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन सेफ्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट किससे, जो डिफरेंट क्या है नेचुरल कैलेमिटीज है, राइट। जैसे साइक्लोन है, साइक्लोन हो जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, राइट। तो हेल्थ और सेफ्टी पर जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि एवरीथिंग विच इज सराउंडेड बाय अस, राइट, सो एवरीथिंग विच इज सराउंडिंग अस इज नोन एज इन्वायरमेंट, राइट। और इन्वायरमेंट के एक तो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, राइट। बायोटिक कंपोनेंट में ही प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, राइट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और कंज्यूमर्स में ही कौन इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन इंक्लूड होते हैं। विच मींस एनवायरनमेंट का जो बायोटिक कंपोनेंट है उस बायोटिक कंपोनेंट में ह्यूमंस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। विच मींस कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको, एनवायरनमेंट को। फॉर एन एग्जांपल डिफरेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे
डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, राइट, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स, तो उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है, राइट। वही जो एनवायरनमेंट है वह भी हमको क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, देयर इज अ हाई पॉल्यूशन, देन ऑब्वियसली ह्यूमन उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द हाई पॉल्यूशन। डिफरेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेस हैं, राइट, वो ह्यूमन को हो सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट एज वेल एज एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द ह्यूमंस, राइट। तो ये इस तरीके का इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। इसी वजह से एनवायरमेंटल एजुकेशन का रिलेशन भी हेल्थ एंड सेफ्टी पर है, राइट। सो लेट्स स्टडी रिलेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। अब जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है उसको हम समझ सकते हैं। तो ह्यूमन environment affect human health in the following days. The first is, if there is a environmental degradation, if there is a high pollution, then many diseases arise due to environmental pollution, right। जैसे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर जब हमने पॉल्यूशन को पढ़ा था तो हमने पॉल्यूशन में भी समझा था, राइट, कि यदि हमारे सॉइल में, वाटर में या एयर में हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहेंगी, गैसेस रहेंगी, तो उससे डिफरेंट जो डिसीजेज हैं रिलेटेड टू लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा अराइज होंगी। ऑल्सो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये अफेक्ट्स ह्यूमंस मेंटली एज वेल एज फिजिकली, राइट। अगर पॉल्यूशन होगा तो वीकनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑल्सो अगर देयर इज अ हाई पॉल्यूशन तो उससे हम मेंटली भी वेलबींग फील नहीं करते हैं। इन दिस वे एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन सेफ्टी एज वेल एज, राइट। फॉर एन एग्जांपल, अगर एनवायरनमेंट प्रॉपर होगा, राइट, एनवायरनमेंट जो है, अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो ह्यूमंस सेफली कैन सर्वाइव, बट इफ there is environmental degradation, right, and if there is environmental pollution तो उससे human safety भी affect होती है। For an example, climate change, right, if there is a climate change तो उससे large scale पर humans क्या होंगे, affect होंगे। global warming है, acid rain है, ozone layer depletion है, राइट, डिफरेंट नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगी, जैसे अर्थक्वेक होंगे जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, राइट। वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक से लार्ज लेवल पर डिस्ट्रक्शंस होते हैं, वॉल्केनिज्म से पर्टिकुलर एरिया में लैंडस्लाइड्स हैं, राइट, देन फ्लड्स हो जाएंगे। अगर रिवर्स की हम माइनिंग करेंगे, रिवर्स का जो कोर्स है उसको चेंज करेंगे तो फ्लडिंग जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इफ देयर इज अ एक्सेसिव रेनफॉल तो फ्लडिंग की वजह से कई पीपल जो है चले जाएंगे, राइट, और ड्रॉट। तो इन सब प्रॉब्लम से ह्यूमन सेफ्टी क्या होती है, अफेक्ट होती है, राइट। नाउ अगर हम देखें तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, दिस प्रमोट्स ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी इन द फॉलोइंग वे, राइट। तो यहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं हमने, तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है ताकि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से हम जो है सेफ रहें, राइट। तो इसको आप इसी तरीके से एग्जाम में जो है लिख सकते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज और एजुकेशन प्रमोट्स ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी इन फॉलोइंग वे। द फर्स्ट इज, ड्यू टू एनवायरमेंटल एजुकेशन humans have become aware of the cause of environmental pollution, what is the impact of pollution on human health and safety। और अगर environmental education से वो अवेयर हो जाते हैं तो obviously वो उन polluting मटेरियल से उनको यूज कम करेंगे, साथ ही साथ उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए भी वर्क करेंगे। सेकेंड, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, राइट,
there is a understanding that maximum amount of chemicals, fertilizers, pesticides used, but because of this water pollution and soil pollution increases. इसीलिए nowadays जो है एजुकेशन की वजह से ही जो स्टूडेंट्स हैं या जो सिटीजन है, दे आर अवेयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. थर्ड इज this has encouraged Ayurveda in health sector. Nowadays we are aware that कि everybody must have a better physique, right? इसीलिए आयुर्वेदा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कई प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं जो कि ठीक कर सकते हैं, राइट. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रमोटेड आयुष, राइट, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी system of medicine in this direction. The importance of environment has been highlighted so that the concept of sustainable development has been focused, right? तो एजुकेशन से ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है. Also, environmental education has increased the awareness of health and safety in humans, due to which humans have adopted many activities in their lifestyle. तो एजुकेशनल स्टडी की वजह से ही जो है न्यू लाइफ स्टाइल अराइज हो रही. द फर्स्ट इज nowadays we are aware of our health as well as safety, therefore going for a walk in the morning ये नई हैबिट है. और चाहे रूरल एरियाज हो या मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, वहां पर मॉर्निंग टाइम में अगर पीपल गो फॉर अ वॉक तो उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. Then yoga and exercise, taking nutritious food in the form of salads, fruits, vegetables. Then washing hands with soap or soil. Whenever we do any of physical activity, we must wash our hands. क्योंकि हो सकता है कि जो different virus हो, right, या कोई भी पैथोजन हो, वो अगर एनवायरमेंट में अवेलेबल है तो वो अफेक्ट कर सकता है. और कोरोना के बाद से तो सैनिटाइजर्स का यूज हम जो है बड़े पैमाने पे करते हैं. नॉट टू यूज एडल्टरेटेड फूड ग्रेन्स, राइट, चाहे वो एडल्टरेटेड फूड हो, मिल्क हो, राइट, इनका यूज नहीं करना चाहिए. देन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, राइट. देन मेंटेनिंग हाइजीन एट द लिविंग प्लेसेस, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, राइट. डस्टबिन में ही जो भी वेस्ट है उसको रखना चाहिए. देन टेक केयर ऑफ हेल्थ एज वेल एज that of the environment, right. Now we will study programs for public awareness related to environmental education. अब देखिए, जो पब्लिक अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है, बट पब्लिक अवेयरनेस इज नॉट इजी एज वेल एज. क्यों? क्योंकि इफ यू पुट अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो उससे लोगों में रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन भी जो है पहुंच सकती है. इसीलिए थ्रू प्रॉपर चैनल, राइट, थ्रू प्रॉपर चैनल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही लोगों तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट मस्ट यूज द गवर्नमेंट मशीनरीज टू स्प्रेड द अवेयरनेस, द साइंटिफिक अवेयरनेस टू द पीपल ऑफ द कंट्री. और इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को, राइट, लॉन्च करती रहती है. तो उनको हम जो है वन बाय वन जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, राइट. सो डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एजुकेशन. द फर्स्ट इज नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, राइट. सो नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या है? कैंपेन है. अब ये कैंपेन है, हमको पता ही है. तो नेशनल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन was implemented in the year 1986 with the objective of spreading environment awareness at the national level, ताकि नेशनल लेवल पर जो जितने भी सिटीजन हैं उनको अवेयर किया जा सके. In this campaign, nominal financial assistance is given to NGOs, right, schools, colleges, universities, research institutions, women and youth organization and government डिपार्टमेंट्स. और इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इस नॉमिनल जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है इसका यूज करके पोस्टर्स के माध्यम से, राइट, पोस्टर्स के माध्यम से
और डिस्कशन के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है। These awareness activities may include conference, workshop, training programs, camps, field trips, rallies, public meetings, exhibitions, right? Then essays, debates, paintings, posters, right? Puppet shows, etc. etc. तो इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस मेथड से या इन मेथड से जो है लोगों को अवेयर किया जाता है। This program has influenced all sections of the society to develop a network of over 16,000 participating agencies across the India। और इसकी वजह से ही कई पार्टिसिपेटिंग जो एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, वो उनका नेटवर्क डेवलप हो चुका है और उनका वर्क ही है कि वो इन्वायरमेंट के लिए राइट जो है इन्वायरमेंट अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उसको चलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। सो दिस इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम was launched by the central government in 1983-84 during the sixth 5-year plan, and the objectives of this is first promote environmental awareness among all sections of the society, spread environmental education through informal mode, for example newspaper, media, etc. etc. Promote environmental education through educational, scientific and research institutions. Then promote awareness of environmental issues among people through non-governmental organizations, media, newspaper, magazine, advertisement, etc. etc. And use various mediums including films, audio, video, radio, electronic advertisement, hoarding, poster, seminar, workshop, competitions, right, meetings to disseminate the message concerning environment and awareness. Right. Third is national नेचर कैंप प्रोग्राम। देखिए यदि हम स्टूडेंट्स को काफी साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करें बट अगर वो नेचर को फील ना कर पाए, नेचर से एसिमिलेट ना हो पाए, तो उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाएगी या इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है स्प्रेड नहीं हो पाएगा। बट यदि हम स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट एरिया में, सेंचुरी में, नेशनल पार्क में वहां पर कैंप के द्वारा उनको विजिट कर पाते हैं, इंपॉर्टेंस को बताते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे, राइट। तो उसके लिए जो प्रोग्राम है वो कौन सा हो जाएगा, नेशनल नेचर कैंप प्रोग्राम। सो दिस नेशनल नेचर कैंप प्रोग्राम इज एन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और इस प्रोग्राम के तहत जो है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड जो फीलिंग अबाउट द एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट किया जाता है, राइट। और इस नेशनल नेचर कैंप प्रोग्राम के तहत क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी फॉरेस्ट एरिया में, राइट, फॉरेस्ट एरिया में, नेशनल पार्क में, सेंचुरी में उनका कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। एंड over there, yeah, in this camp student get an opportunity to visit and experience the science. Next is seminars, right, symposia, workshop and क्या हो जाएगा, conference हो जाएगा। तो environmental education को improve करने के लिए, environmental education को या awareness को spread करने के लिए ये क्या है, informal way, right? So seminars, symposia, workshops and conferences are the informal medium to spread the educational awareness, environmental awareness and environmental educations, and these provide opportunities for scientists, environmentalists and professionals from universities, technological institutions to share their knowledge। और अगर कोई पर्सन जो कि इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से है तो लोग उनकी बातों पर बिलीव करेंगे एंड डेफिनेटली दे विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय दीज ऑफिसर्स, राइट। आल्सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, राइट, ताकि
वो पोस्टर्स के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और पब्लिकेशंस के माध्यम से जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है उसको प्रमोट कर सके. These programs disseminates technical information to various people including local people. Next is programs of मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. तो ये जो जितने भी प्रोग्राम्स है, राइट, द फर्स्ट इज नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन, सेकंड एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, थर्ड इज नेशनल नेचर कैंप प्रोग्राम, then seminar, symposia, workshops and conferences. So these are the programs at national level. Now let's understand programs of Madhya Pradesh government. और यहाँ पर जो है ये 11 मार्कर का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are the different programs launched by Madhya Pradesh government for public awareness related to environment education. So now study different programs of Madhya Pradesh government for public awareness related to environment change. The first is अनुभूति प्रोग्राम. अब जो अनुभूति प्रोग्राम है ये नेशनल नेचर कैंप प्रोग्राम से ही क्या है, मिलता जुलता है, राइट. और इसमें अनुभूति का मतलब ही होता है रियल एक्सपीरियंस. इफ वी प्रोवाइड हाईली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स तो वो उसको अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, बट उसकी वजह से वो नेचर से एसिमुलेट नहीं हो पाएंगे, उसको फील नहीं कर पाएंगे. देयरफॉर जो अनुभूति प्रोग्राम है, द अनुभूति प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑन December 5, 2016, and the objective of this program is to educate the school students of the state about forest, wildlife and environment प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन. और ये मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पब्लिकेशंस के थ्रू, राइट, नेशनल पार्क सेंचुरी की फिजिकल विजिट के थ्रू जो है इस नॉलेज को स्प्रेड करता है. देन सेकेंड, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट. So this climate smart village project was launched in the year 2018, and under this people are made aware of climate change. And this climate smart village project includes 60 villages of Sihor district, Rajgarh district and Satna district. Then National Green Crops Scheme. Under this scheme, environmental awareness programs are being organized at all school colleges of the state, right, through eco clubs. नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीन स्कूल ग्रेडिंग. क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा. तो ग्रीन स्कूल ग्रेडिंग प्रोग्राम, देखिए इन सब का ऑब्जेक्टिव्स वही है, आप नाम याद रखें वो कब लॉन्च हुआ है. तो अनुभूति प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 15 December 2016. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोग्राम लॉन्च्ड in 2018 by Madhya Pradesh government, and this includes 60 villages of Sihor, Rajgarh and Satna district. Then National Green Crops Scheme हो जाएगा. ग्रीन स्कूल ग्रेडिंग क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा. अंडर दिस प्रोग्राम एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज बीइंग प्रमोटेड इन द स्टेट. और इससे ऐसे स्कूल्स जो कि एनवायरमेंट प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, राइट, उनको ग्रेड भी दिए जाते हैं. तो ग्रीन स्कूल ग्रेडिंग प्रोग्राम. देन नेचर बिल्डिंग प्रोग्राम. और नेचर बिल्डिंग प्रोग्राम क्या है, नेचर बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत नेशनल पार्क के ऑफिसर, सेंचुरी, इको क्लब्स, ये जो टीचर्स हैं, ये टुगेदर आर प्रमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अंडर दिस प्रोग्राम. देन अगर हम लास्ट में देखें तो जो एजुकेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन है इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, राइट, एंड दिस में बी आस्क्ड एज अ 11 मार्कर क्वेश्चन, राइट. व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन and what are the different steps to increase environmental education, या फिर पब्लिक अवेयरनेस, बात एक ही है. तो अगर ये पूछा जाए कि what are the different methods to increase public awareness for environment, your answer would be same. What is environmental education and what are the different steps to increase environmental education, right? So let's understand. See, there are
following are the steps to increase environmental public awareness and public participation. The first is environmental education, राइट और अभी हमने देखा है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए, राइट, पब्लिक अवेयरनेस के लिए विच मीन्स लोगों को इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस, राइट, प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं, राइट, उनको जो है एजुकेशन के माध्यम से जो है पहुंचाना चाहिए, राइट. सो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज पावरफुल मीडियम ऑफ राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस. इट्स पर्पस इज टू now let's study steps to increase public awareness for environment. This may be asked as a 11 marker question or 5 marker question, right? So what are the different methods or what are the different steps to increase public awareness regarding environment, right? So following are the steps or methods to increase environmental public awareness and public participation, right, regarding environment. The first is environmental education और इसको हमने अभी बहुत अच्छे से समझ लिया है. Environmental education is powerful medium of raising public awareness and its purpose is to create public awareness to every person about environment, composition of the environment, consumption, problems related to environment. क्लियर. सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट. सो देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर सोसाइटी एंड environmental public awareness can be spread through means of communication. For an example, newspaper, magazine, radio, television, electronic media, etc., etc. Third, establishment of environmental science centers, right? So environment के regarding जो scientific research है, information है, उसको collect करने के लिए, publish करने के लिए, right? Environmental science centers can be set up, right, in rural areas, right, or urban areas, then by organizing seminars, right. अब देखिए पब्लिक अवेयरनेस का बेस्ट वे ये है कि कोई अथेंटिक पर्सन, राइट, अथेंटिक पर्सन विच मींस द पर्सन हु बिलोंग्स टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसको इनवाइट किया जाता है और किसी पर्टिकुलर प्लेस में लोगों को फिर जो है सेमिनार के माध्यम से जानकारी दी जाती है. तो सेमिनार्स फॉर विलेजर्स, स्कूल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स कैन आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्लेन the importance and protection of the environment. Third क्या हो जाएगा, by means of entertainment, right? So different means of entertainment. For an example, movies हो जाएगा, right? Movies, street plays, right? Folk music, traditional songs, right? Street plays और क्या हो जाएंगे, movies हो जाएंगे. इनके द्वारा जो है educational या public awareness को increase किया जा सकता है. Then by government and non-government organizations हो जाएंगे, right? तो different government departments like Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Pollution Control Board, right, Bombay Natural History Society and different NGO, right? NGO seminars के द्वारा, workshops के द्वारा awareness को increase कर सकते हैं. Also schools में जो NSS, NCC, Scout Guides होते हैं, राइट, इनके द्वारा भी पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा सकता है. वाई ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस. देखिए जो जितने भी सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, राइट, या स्पीचेस होते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें या ना करें, राइट. जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करने में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए डिफरेंट पार्टिसिपेशंस जो हैं किए जाते हैं. सो इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स competition like poster making, essay writing, debate, speech can be organized among the students to create public awareness on environment issue, right? और ये जो information है can be provided on many issues
like environmental problems, method of environmental protection, use of non-conventional energy sources, etc. etc. Then formation of environment club. तो डिफरेंट स्कूल में या कॉलेजेस में जो एनवायरनमेंट क्लब है ये फॉर्म किए जा सकते हैं, एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, राइट. एंड द पर्पज ऑफ दिस इज टू मेक द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन these clubs aware about the environment through various programs. Under these clubs, जो students can be organized to visit places of environmental importance, right? So films related to environment, right? Plays, plant samplings, posters, planting, painting, cartoons, right? etc. etc. different activities से इन environment club के द्वारा भी अवेयर किया जा सकता है. देन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा. तो पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम अब क्या है, कुल मिलाकर ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से इन्वायरमेंट पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसके बारे में अवेयर किया जा सकता है, राइट. साथ ही साथ द मेन objective of this is to make people aware of the increasing population, its causes and consequences, also to promote women education, right, and to make them aware of its effect on the environment and to make them aware of the effects of the pollution, right. तो population को especially women को जो pollution के बारे में aware किया जा सकता है, right. So in this way we have studied environmental education, relation of environmental education to health and safety, different programs related to environment. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.